Good afternoon to all of you. So I think last time when I was there in your class, probably it was for the Bihar Development Forum case study, and prior to that I came in your class with one of the startup founder who has established a startup which has grown up to 1,000 crore company, and he belonged to Bihar only, and my voice is audible in the last bench? Okay. So today is another such session where you are going to get a lot of exposure, lot of information, knowledge and insight with respect to developing your mindset, which can help you in charting your career. We have got two very distinctive personalities over here. Mr. Raj Singh, who is an entrepreneur, and Dr. Aditi Narayani. She is an academician. She teaches entrepreneurship. And she teaches entrepreneurship. Okay. Theory and practice both. Theory and practice both. So both is happening in the same house. Both are husband and wife. And Mr. Raj is the founder of a manufacturing company which is RST Semiconductors Private Limited, and he is into manufacturing of SIM cards and other semiconductor devices. So it's a technology based electronics manufacturing setup, and definitely India has got a lot of potential in this kind of manufacturing, and he got a team of more than 100 persons. He is having his manufacturing unit in Himachal Pradesh, and because of companies like his, India's dependency on Chinese import is reducing. Otherwise, we have to rely completely on Chinese and Taiwanese import, and we need more and more startups and enterprise in this segment. So we will definitely would love to hear from him. And what I'll suggest or what I'll recommend, that can we have an interactive format, as we have mentioned in the on the screen, that it would be an interactive session. So more and more questions coming from your side. We will have an intro round first of all. They will speak about their story, and then we would like to have some time so that you can ask your questions, and we can have a Q&A session so that it becomes more interesting and attractive. And Dr. Aditi Narayani Paswan, she is an assistant professor at University of Delhi and a columnist in Indian Express newspaper and Outlook magazine. She has also been part of Commission on the Status of Women in United Nations, New York. She has co-founded Dalit Adivasi Professors and Scholars Association and one of the leading think tank in the field of study of inclusion and public policy. तो ये प्रोफेशन से एक शिक्षिका हैं, लेकिन ये जो समाज में मार्जिनलाइज्ड जिनको आप देखते हैं, चाहे वो महिला हो, सबसे पहली तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है वो महिलाओं की है, दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो हमारे दलित और आदिवासी भाई हैं, उनके बातों को लेकर के, उनके हितों को लेकर के उनकी आवाज़ बनने का काम डॉक्टर अदिति नारायणी पासवान करती हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर अदिति नारायणी पासवान जी के पिताजी और इस सिमित संस्थान के पैट्रॉन, अभिभावक, मेरे अभिभावक डॉक्टर संजय पासवान जी, डॉक्टर संजय पासवान का पूरा जीवन समाज में जो दबे कुचले, जो पिछड़े हैं, उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को उठाने में, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो चूंकि यह भी एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं,
पटना विश्वविद्यालय में ये अपनी सेवाएं देते रहे। मुझे तो सर आप रिटायर कर चुके हैं वहाँ से, अब वीआरएस ले लिया सर ने, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर ने ले लिया, लेकिन एक प्रोफेसर के रूप में बहुत एक्टिव इन्होंने इनका जर्नी रहा और लगातार ये नया शोध, रिसर्च और छात्रों को जागरूक करने में और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को के बीच में बहुत लोकप्रिय रहे। प्रोफेसर संजय पासवान सर की क्लासेस हमारे कॉलेज में भी 1-2 बार हुई, हमारे कई कार्यक्रमों में सर का आना हुआ और वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को छात्रों को जागरूक किया तो वो उल्लेखनीय है। और पूरे भारतवर्ष में दलित चेतना को लेकर के, स्त्री विमर्श को लेकर के, कबीर को लेकर के और विभिन्न विषयों पर डॉक्टर संजय पासवान जो हैं वो सतत रूप से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के, तो ये लगातार अपना कार्य में क्रियाशील रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी 1 महीने का समय गुजरता होगा जब इनके कोई कार्यक्रम पटना में या दिल्ली में नहीं होते होंगे। बहुत एक्टिवली, संसाधनों की कमी होने के बावजूद ये अपने इन सारे मिशन में लगे रहते हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं। लेकिन आप अपनी समस्याओं को लेकर कभी भी इनके पास, इनके दरवाजे पे जा सकते हैं और हर समय ये ओपन डोर पॉलिसी, कभी इनका घर लॉक नहीं मिलता है, हर समय घर का दरवाज़ा खुला रहता है और हर समय इनसे मिलने जुलने आने वाले लोग जो हैं वो इनके पास खुले दिल से पहुंचते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम भी इनके विचार था कि डॉक्टर अदिति नारायणी और श्री राज, मिस्टर राज सिमेज में छात्रों से मिलने के लिए आए और आज बहुत कम समय के लिए इन लोगों का दोनों का पटना आना हुआ है और उसी कम समय के बीच में ये आज आपके कार्यक्रम में आपके बीच में आए हैं। तो एक बार फिर से जोरदार ताली से स्वागत करो। तो मैं कुछ थोड़ा सा एक क्वेश्चन का फ्रेमवर्क दे देता हूं आपको, ताकि अच्छा ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन का फ्रेमवर्क दे रहा हूं मिस्टर राज के लिए कि ये अपने छात्र जीवन से शुरुआत करें, क्योंकि ये अपना उस दौर को याद करें जब ये आप ही लोग की तरह कॉलेज में थे और युवावस्था में थे और इनके सामने हो सकता है उस समय भविष्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा धुंधला ही रहता है भविष्य की जो रूपरेखा होती है। और कैसे इन्होंने शिक्षा लेने के बाद सरकारी नौकरी के विकल्प मिले होंगे, या ये तो भाई मुझे पता चला ये बाई एजुकेशन ये एक एडवोकेट हैं, लॉ की इन्होंने डिग्री हासिल करी है, तो इनके पास प्रैक्टिस करने का भी एक विकल्प होगा, तो वह भी एक सम्माननीय विकल्प माना गया है। हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की राह से कम कठिनाई वहाँ आती। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो कठिन रास्ता माना जाता है, सबसे कठिन रास्ता तो मैं मानता हूँ वो है एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता, उद्यमिता का रास्ता। और हमारे देश को अधिक से अधिक उद्यमियों की आवश्यकता है ताकि हम बेहतर उत्पाद बना सकें, सस्ते उत्पाद बना सकें, कंज्यूमर को लाभ पहुंचा सकें, रोजगार बना सकें, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा सकें। हर तरीके से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो देश के निर्माण में बहुत महती भूमिका निभाता है। तो राज ने, अब मैं नीचे ये बात कह रहा था कि क्लास में बच्चों के बीच में राज की उपस्थिति जो है वो आकर्षण का केंद्र बनेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनकी कहानी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस और उतार चढ़ाव तो होता ही होता है। तो आप अपने जीवन में, आपके करियर में किस तरह से आपने ये चूज़ किया, और फिर अगर कोई कठिनाइयाँ आई या अब आप क्या आगे का प्लान कैसे कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, इन बातों को आप रखिए बच्चों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, हाय एवरीवन, आई एम राज। यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली? तो इन्होंने बोला कि मैं अपने बचपन से, जब से क्लास ख़त्म किया तब से मैं आपको बताऊं। इन्होंने बताया कि इस कॉलेज के बारे में, आप लोग सब लोग बिहार के दूर दराज गाँवों से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते होंगे, छोटे छोटे गाँव से आते होंगे जहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। MBA BBA की जो एजुकेशन होती है, इट्स प्राइमरली इन इंग्लिश, राइट? And it's very tough to learn that language when you are not from English background. So सबसे पहली कठिनाई आप लोगों ने पूरी की, आपने एडमिशन लेके यहाँ पे. So that is also an enterprise. I would consider you guys as an entrepreneur as and when you took the admission here in this college. So आप लोगों ने जब यहाँ पे एडमिशन लिया
तो आप लोगों ने इससे बड़ा इंटरप्राइज आप नहीं कर सकते जब आप लोग अपने गाँव से निकल के इतनी बड़ी हिम्मत की आपने। और उद्यमिता की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हिम्मत, कि आपको शर्म लिहाज छोड़ के, कि आपको हिम्मत जो चाहिए आपको, कि आप एडमिशन लें भाई कि MBA BBA करेंगे, IIT IIM के अलावा भी हम लोग भी पढ़ सकते हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचेंगे। तो हमारे लिए भी मैं भी इलाहाबाद से हूँ। तो when I was in college, obviously English was a very tough problem for everyone. We also don't we can understand English, but you can't converse in English, speak in English properly when you are in college, school, when you don't have that environment. घर में सब लोग अवधी और भोजपुरी बोलेंगे तो कैसे आप समझेंगे इंग्लिश? So that was the first problem one faces. मेरा एडमिशन मैंने क्लैट दिया, उसके बाद मुझे NUJS करके कॉलेज है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस, शायद किसी ने नाम सुना होगा। कितने लोगों ने नाम सुना है क्लैट का? जी जी। तो क्लैट में NUJS कैलकाटा में मुझे एडमिशन मिला, मैं गया। अब NUJS कैलकाटा इज़ अ वेरी एलीट कॉलेज। अब IIT IIM NUJS ये सब, और वहाँ पे सब लोग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई के टॉप कॉलेजेस, पटना के टॉप कॉलेजेस, क्या नाम था आपके कॉलेज का, स्कूल का? नॉट डेम के बच्चे ये सब पढ़ने आएंगे। और मैं तो इलाहाबाद के छोटे से स्कूल से पढ़ के आया हूँ जिसको इंग्लिश भी सही से नहीं आती। सो दैट वाज द जर्नी यू हैव टू, एंड दैट इज दैट जर्नी you have to finish that journey, you have to complete the journey, and that journey is not any spectacular journey. You don't have to feel proud about it. देखिए, हमारे आपके बीच में, हम सब के बीच में ना, हर इंसान को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। जैसे आप लोगों को अमीरी, आप लोगों को जो घमंड नहीं करना चाहिए बहुत पैसे आ जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए आपको बहुत ज्ञान आ जाए, तो आपको अपनी कमज़ोरियों और अपनी नाकामियों का भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ आया हूँ। आप जैसे आपने जहाँ से आए हैं, आप लोग जहाँ से भी आप आए हैं, आपके अगल बगल के पड़ोस के गांव के लोग, अभी भी आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके दूर दराज के लोग वहाँ अभी भी गांव में होंगे जिनके पास ये भी सुविधा नहीं है यहाँ भी ये पहुँच पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू रियलाइज़ वेयर यू आर एंड अंडरस्टैंड वेयर यू आर, बट ऑल्सो फील दैट दिस इज़ नॉट समथिंग which is out of world experience you are going through. We all are normal people. हम सब नॉर्मल हैं, हम सब बराबर हैं। सो ये आप लोग यहाँ तक आए हैं, आप लोग पहुँचे हैं, तो ये यहाँ से आप लोग आए, जो ओयो का कौन अग्रवाल है, रितेश अग्रवाल ही बन सकते हैं आप लोग वो गज़ल अलग और शार्क टैंक में जो आती हैं वो भी बन सकती हैं आप लोग। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हज़ारीबाग से आएँ, आप हैदराबाद से आएँ, आप आए अहमदाबाद से पढ़ें, आप सीमेज से पढ़ें, आप सबके पास वही रास्ता पूरा करना है। तो उस रास्ते पर चलना है। वो फैज़ की एक कहावत कि इस राह में जो गुजरा है सबके साथ गुजरेगा। तो ये रास्ते में सबके साथ जो गुजरा है वो सबके साथ गुजरेगा, कोई नई बात नहीं है। तो यू फील प्राउड ऑफ इट दैट यू हैव चूजन दिस पाथ एंड you have to complete this path. That is the only thing that only things matters, that you have to finish, you have to reach where you want to reach. So मैंने अपनी कॉलेज ख़त्म की और घर से बहुत प्रेशर था भाई कि बहुत महंगा पढ़ाई की हो, साल की 1.5 लाख रुपए की फ़ीस है, तो एडमिशन अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, और नंबर थोड़े इतने अच्छे नहीं थे मेरे, मिडिल एवरेज बच्चा था। तो फिर आखिरी सेमेस्टर में, आखिरी साल में बहुत मेहनत की, इंटर्नशिप करके, लगा के, ट्रेनिंग वोनिंग करके किसी तरीके से KPMG में PPO मिला मुझको। मैंने KPMG में आई जॉइंड एज अ लॉयर, एज अ टैक्सेशन लॉयर। उसके बाद फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद मुझे लगा कि शायद जो है सिर्फ क्या कहते हैं, और उसके बाद जो प्रेरणा मिली मुझको, उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें हमको लगा कि हमें लॉ छोड़ के कुछ और करना चाहिए, जिससे और लोगों का और एक तरीके से माई इम्प्रेशन शुड बी देयर ऑन द लार्जेस्ट सोसाइटी।
हम लोगों ने एक फैक्ट्री थी और हम लोगों ने मैंने उसको देखा और मैंने सोचा इसमें काफ़ी जो है स्कोप है. Then I took over that factory and we started in 2016. I took over that factory in 2018. We started manufacturing SIM cards, and that is the day. And today, by grace of God and by grace of government, government has considered this industry so well equipped to service Indian customers as well as foreign customers that they have banned SIM card production import from China or anywhere outside India. So that was we had to go to the government, we have to fight with them, argue with them, reason with them. So उसके बाद जो है 2019 में then government understood that these things government has to give importance to, and तो उन्होंने 2018 में 19 में उन्होंने सिम कार्ड का इंपोर्ट बंद कर दिया, जिससे कि हम लोगों को जो है एक प्रमोशन मिल सके, हम लोगों को एक टू गिव इम्पेटस टू आवर इंडस्ट्री. सो दैट इज़ माई वेरी शॉर्ट स्टोरी. राइट नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट इंडस्ट्री. वी आर डूइंग close to 6 million cards a month. We are servicing all the major companies in India, even some companies in Africa. और यही जर्नी है. That journey I have to complete. So as you guys. और देखिए लाइफ में क्या होता है कि जो है I don't know how many of you know how to play rummy. तो that is not if देखिए क्या है ना, लाइफ में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना वो पत्तों की तरह होते हैं आपके हाथ में जो आते हैं. आज अच्छे हैं, कल बदल सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, और परसों फिर अच्छे आएंगे. ओनली थिंग मैटर्स हाउ यू प्ले द गेम. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस and wait for the right time, because time you never know when it can be right or when it can be wrong. So be at the right place and wait for the right time. When the time will be right, you will get what you want. Thank you. हाँ बिल्कुल, आइए. चाहूंगा कि जो हमारी दूसरी आज की गेस्ट है डॉक्टर अदिति नारायण पासवान, वो आपके बीच आए और अपनी कहानी रखें, अपनी बात रखें, और इसके बाद हम लोग इंटरेक्शन सेशन के लिए समय बचाएंगे. I think बिना mic के am I audible or should I use the mic? Use the mic? Okay. So hi, a very good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon. Oh, such a lovely and full of energy this class is. It just feels like I was taking class yesterday. Now I've just come back to my hometown and taking another class. So yeah, my name is Aditi and I teach in Delhi University. So my subject area is sociology. It has nothing to do with much of what you are doing, but you know, abhi ke time mein everything is interconnected. You cannot understand anything in just one absolute terms. बिजनेस करना है, किस सोसाइटी में करना है, समझने की ज़रूरत है. किन के लिए करना है, समझने की ज़रूरत है. So I did my PhD from JNU, which was on Dalit entrepreneurship. And teaching entrepreneurship, I think, is much easier. Rather than being my husband is much difficult. Because for me, every day I wake up, prepare my lecture, go give lecture, come back. Nothing else I have to get. But when I see my husband, every day it's a struggle. Every day, you know, factory mein kuch ho jayega, dealing with the people, traveling, it's a lot more of effort. So, a brief academic introduction I'll give you. I did my schooling, I'm from Patna itself. I did my schooling from Notre Dame. After that, I went to Delhi University. Stephen say I did BA History. Then I did Masters in Sociology from Delhi School of Economics. And then I went to Jawaharlal Nehru University. I did my MPhil and PhD. So this is the brief introduction that I had. Regarding entrepreneurship, I would like to say, this is specifically for the girls, I would like to say, कि entrepreneurship का, of course, there's tech entrepreneurship, .com है, ये हैं. But when I started doing my PhD, बहुत जगह मैं जब field trip पे गई,
I realized कि every woman, India is a land of skill. All of us are skilled. हम लोग क्रोशिया बनाने में स्किल्ड हो सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी में, मिथिला पेंटिंग में. हम लोग, मेरा PhD मिथिला पेंटिंग पे था. I saw every woman in my village, they knew how to paint. They were skilled. It's an entrepreneur. Entrepreneurship का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं टेक entrepreneurship करूं. Entrepreneurship is culture entrepreneurship, social entrepreneurship. और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, so we can do wonders, all of us. एक आपका बहुत अच्छा चलता है सखी पैड करके. सो ऑल ऑफ यू नो कि एक पैड का कॉस्ट विस्पर अल्ट्रा हो गया या कोई भी 7 रुपये पर पैड पड़ता है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. एंड यू नो कि हमारे देश में मैक्सिमम महिलाओं का डेथ होता है बिकॉज ऑफ द UTI एंड दिस इन्फेक्शन. क्योंकि आज भी औरतें क्या करती, दे यूज द क्लॉथ मटीरियल. एंड दिस इज़ वन सेगमेंट दैट ऑल ऑफ यू नीड टू कम. मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक इशू है जो हम सबको एड्रेस करना चाहिए. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैड का कॉस्ट 1 रुपये 75 पैसे कर दिया. और ये छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट की तरह भी कह सकते हैं, वो बना के हर गांव में वो ट्रेनिंग देती हैं. आप पैड कैसे बनाओ, पैड को डिस्पोज कैसे करो, क्योंकि अभी भी एक टैबू है ना कि काला पॉलिथीन में देंगे, क्या कहाँ डिस्पोज करोगे, ये सब. तो वो कैसे, आप कैसे बायोडिग्रेडेबल तरीके से उसको डिस्पोज कर सकते हो. दिस इज़ वन सेगमेंट दैट ऑल ऑफ यू नीड टू कम. As a woman, I am saying that all of us need to address this segment. आप लोग इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो. सर हैज़ गिवन दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ ऑफ अस कि हम आप लोग से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन कम अप. I would like to inform over here. One of my student, Ravi Ranjan, he has set up a unit for making sanitary pads from banana stem fiber. बनाना स्टेम फाइबर से सिमज का एक स्टूडेंट जो है वो सैनिटरी पैड्स बना रहा है. उसकी कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है. और फार्मर्स के पास जो बनाना का स्टेम जो है वो मतलब यूज में नहीं आ पा रहा था, वो भी यूज में आ जा रहा है. और जो आपने बताया बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, तो वो उसमें भी सुविधा है क्योंकि उसमें प्लास्टिक का यूज बहुत. एंड इट्स गुड फॉर द हेल्थ, फीमेल हाइजीन ऑल्सो. एक ये. दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि और भी हम लोग, अभी मैंने देखा व्हाइल आई वाज डूइंग रिसर्च में, हम लोग जो पीपल के पत्ते में खाते हैं, इट्स अ बायोडिग्रेडेबल. अभी जर्मनी में और अमेज़ॉन पे वो कुछ 500 रुपये का आपको मिल रहा है. छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आप लोग सब जहाँ से हम लोग हैं उन सब चीज़ों पे ही हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेट करें. वी डोंट नीड टू गो टू बॉम्बे या दिल्ली. ठीक है, हम भी गए, सब कुछ किया हमने. दिल्ली जाके भी पढ़ के आज भी मिथिला पेंटिंग के बारे में हम सब जगह बात करते हैं. तो इट इज़ गुड टू बी कनेक्टेड टू योर रूट. शार्क टैंक में एक झाजी बहुत फेमस हुए हैं जो आपका ये अचार वगैरह बना रहे हैं. अब हम सबको लिज्जत पापड़ पता है, क्यों? क्योंकि गुजरात एक ऐसी स्टेट है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप होना एक, अब इट इज़ समथिंग विच इज़ लुक्ड अबव. ठीक है, एक हमें ये समझना हो कि बिहार जैसी जगह अगर आप UPSC नहीं करो, डॉक्टर नहीं बनो, इंजीनियर नहीं बनो, तो मतलब दिमाग कम है ना. या लड़कियां होम साइंस कर लेंगी, कुछ नहीं के तो आर्ट्स पढ़ा दो, आर्ट्स करके शादी तो कर ही लोगी. तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं है, वहाँ छोटा काम भी हम करेंगे. तो अभी ये एंटरप्रेन्योर जो नेचर है ये बिहार में अभी आ रहा है. एंड ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. तो लुक फॉर थिंग्स बैक होम ओनली. किस किस चीज़ों को तुम लोग इशू को एड्रेस कर सकते हो. जैसे मैंने कहा स्किल्ड आर्ट, एक हमारे यहाँ सिक्की आर्ट होता है जो बैम्बू का रोड पे लोग बेचते रहते हैं. आप उसको ऑनलाइन ले जाओ. आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने अवेलेबल हैं, etsy.com, Instagram, Twitter. You all can just go there and bring these products on the Bihar level. आप अपने घर में अपनी माँ दादी जो, उनको भी you can promote this entrepreneurship. Once of course you need this marketing सीखना, ये सब सीखना होगा, SEO, CEO, मुझे ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स पता नहीं है. I'm sure you all of you have mastered it. पर ये सब आप लोग को सीखना पड़ेगा. And trust me, look for the solutions in-house, in your village, in your town. They are, ये जो स्टार्टअप का कल्चर जितना मैंने समझा है इंडिया में, वो सिर्फ उन्होंने छोटे छोटे इश्यूज़ को पिकअप किया है. ओला ले लो जो इंडिया का हो गया, ऊबर ले लो, होटल्स ले लो, बुकिंग ले लो. जो पहले 4 जगह टिकट के लिए घूमते थे, अब मेक माई ट्रिप पे करते हैं. तो दे हैव जस्ट एड्रेस द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स वेयर सोशियोलॉजी कम्स इन. क्योंकि सोशियोलॉजी तुम्हें हेल्प करेगा समझने में कि सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है, किस चीज़ की कमी है. एज अ वुमन व्हाट आई नीड टू एड्रेस, एज फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, एज अ दलित व्हाट आई नीड टू एड्रेस. और ये सब चीज़ें इट कम्स अंडर दिस बिगर प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें फोकस होना चाहिए एंड जिसमें आई एम श्योर कि तुम लोग सब के सब यू गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन दैट. सो दैट्स ब्रीफली
चलो, थैंक यू सो मच. तो मैं इसके पहले कि तुम लोगों के प्रश्न लूं और तुम लोग अपने प्रश्न सोचो भी, है ना, और तुम लोग कॉपी में प्रश्न लिख लो. एक बार सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस लिख लो कॉपी में, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन तुम घर ड्राफ्ट कर सको, घर चेंज कर सको. तो राज, मेरा पहला सवाल जो है वो आपके साथ है. एक नौजवान, एक युवा या एक कॉलेज से जब पास आउट होकर स्टूडेंट निकलता है, उसके मन में कोई एंटरप्रेन्योर ड्रीम अगर आता है, आजकल फंडिंग के बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह की सुविधाएं हैं. इन सब चीज़ों के बावजूद एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत शुरुआत में कठिन होती है, और उसको उसकी स्टोरी में, उसके आइडिया में, उसके प्लान में बिलीव करने वाले वो पहले इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाते हैं, घर से रेसिस्टेंस मिलता है. तो आपका क्या एडवाइस होगा कि हाउ टू स्टार्ट अबाउट इट? जो शुरुआत के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होने चाहिए, वो किस तरीके से कोई कैरी ऑन कर सके कि वो उसका शुरुआती जो संघर्ष का दौर है वो निकाल सके वो. नहीं तो अक्सर बच्चे जो होते हैं वो उसी शुरुआती संघर्ष में हिम्मत उनकी टूट जाती है. देखिए, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस इज पेरेनियल. आज किसी को 10 रुपए चाहिए तो किसी को 100 रुपए, किसी को 10 लाख, किसी को 10 करोड़, तो किसी को 20,000 करोड़ रुपए चाहिए. तो मिल जाने के बाद भी रखने में दिक्कत हो जा रही है. So everybody, the problem of finance is perennial. I don't think that. So problem of finance is perennial. और इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम अपने आप जाएगी, इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. So अब लेट्स से, जैसे आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. मैंने ये प्रोडक्शन एक फैक्ट्री से होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्री. ऐसा नहीं है आपने एक शेड लिया, आपने मशीन लगाई, आपने चला दिया. यू हैव टू टेक लॉट ऑफ कंप्लायंसेस आर देयर इन दिस industry. Lot of licenses you need to take from government, from lot of international bodies. वो आके जाते बोले यहाँ कैमरा नहीं, यहाँ लगाओ, नीचे नहीं, ऊपर करो, दाएं नहीं बाएं करो. It takes lot of time. It takes more than a year or 2 years to onboard one customer. अभी it took 1 year for us to onboard Airtel. 1 साल छोटा समय नहीं होता है for an entrepreneur. You have to sustain everyone, you have to pay salaries, and you have to do, and it's a very lot of hardship is involved in this thing. So देखिए, अब क्या होता है कि आइडिया तो आइडिया है. अब जिसको आइडिया जो आया, अगर वो महंगा आइडिया है तो उस पर पैसे लगने हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते आप. सो मैंने इसमें क्या ना, आई कॉल दिस अ टॉप डाउन अप्रोच. कि आजकल लोगों में क्या हो गया है कि लोग समझते हैं कि देखिए मुझे इतना पैसा मिल जाए, 10,000 रुपये मिल जाएगा तो मैं ये काम कर दूंगा, 1 करोड़ मिल जाएगा तो मैं ये बना दूंगा. तो आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. फर्स्ट सेल योर प्रोडक्ट, देन मेक योर प्रोडक्ट. दिस इज माई शॉर्टकट टू सक्सेस, विच इज दिस इज वॉट एवरीबडी, एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द फाइनेंस. और हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा टू एवरी वन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे कहते हैं ना, टू बी अ लीडर यू हैव टू बी अ follower. To be a good speaker, to become a good follower first. Yeah, to be a good speaker, you need to be a good listener first. So to be a good employer, you need to be a good employee first. So I think everybody must work for at least 2 years anywhere, and you learn at the expense of your employer. तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, व्हेन वी आर लॉयर्स, नो, सो हम लॉयर्स क्या कहते हैं, लॉयर्स, अब आज मुझे आपने केस दिया, कल को मान लीजिए आपने मुझे केस दिया, बोला भैया मेरा 10 लाख रुपया, 10,000 रुपये का जो है पैसा लेके बैठा है, इन्होंने पैसा ले लिया है, छुड़वाने जाओ कोर्ट में केस करो. आपने मुझे पहला केस दिया और मैं हार गया, आपके पैसे पे हार गया मैं, तो आप तो मुझे फीस देंगी ना. तो फिर क्या हुआ कि हम लोग, इसलिए क्या होता है, जूनियर सीनियर का कॉन्सेप्ट होता है वकीलों में, लॉ में, कि यू गो एंड ज्वाइन अ सीनियर and you learn at his expense.
So you learn at his expense, as in when your failures won't affect the person involved. It will, he will, your senior, your employer will take care of it. So everybody, please take 2 years after you graduate and work wherever you get the job. That is very important for anyone to start an entrepreneurial journey. जब तक आप नौकरी नहीं करेंगे, जब तक आप 4 लोगों से डांट नहीं सुनेंगे, जब तक आपको एक डिलीवरेबल, आपको एक डेडलाइन और आपको एक जो है क्या कहते हैं डायमेंशन नहीं पता चलेगी अपने जॉब की, तब तक आप जो है एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते अच्छे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर तुम लोगों को एक मैसेज मैं ये भी देना चाहूँगा, जब आप जॉब की बात कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर ड्रीम अगर आपका है तो आप ऐसे जॉब को प्रायोरिटी दो जहाँ पर आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, वहाँ पर हसलिंग का एनवायरनमेंट हो, मतलब वहाँ पर आपको अलग अलग डोमेन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए. कई बार कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई स्टार्टअप कल्चर जहाँ पर है, वहाँ पर अगर तुम जॉब कर रहे हो, क्योंकि जब तुम किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक किसी डिपार्टमेंट में एक किसी पोस्ट पे जाते हो जिस पोस्ट पे 700 लोग और काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ तुमको वो सारा मल्टीपल डिसिप्लिन का नॉलेज नहीं मिल पाता है जो एक एंटरप्रेन्योर को तो मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल डिसिप्लिन का नॉलेज होना चाहिए. उसको फाइनेंस भी देखना है, उसको अकाउंट्स भी देखना है, उसको मार्केटिंग भी देखना है, सेल्स भी देखना है, ऑपरेशंस भी देखना है, ह्यूमन रिसोर्स भी देखना है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग भी देखनी है, उसको क्लाइंट सर्विसिंग भी देखना है, उसको सारा कुछ देखना होगा. जबकि जब आप किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट में किसी एक डिपार्टमेंट में जॉब करते हो तो वहां आपको बहुत लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है. तो अगर तुम्हारा एंटरप्रेन्योर ड्रीम है तो तुम किसी छोटी कंपनी में जाओ जहां तुमसे 10 तरह का काम लेगा, जहां तुमको सुबह से लेकर शाम तक परेशान करेगा, तो हो सकता है तुमको ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा. बिल्कुल सही. तो अभी आपने बताया कि चाइना से भी काफी डंपिंग हो रही थी जिसको कि गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेट किया है. तो क्या अब जो इंडियन प्लेयर्स हैं सिर्फ वही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? कितने प्लेयर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में और ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो किस स्टेट में हैं, और क्या एक मतलब किस तरह का एक इंडस्ट्री आउटलुक है आपका? So I call myself a goldfish in Shark Tank. We are a very small company. We are a startup. We are a new entrepreneur, medium scale enterprise, and our competitors are multinational companies from Europe. So that's why I call myself when I come to go to the clients and talk to them भाई कि तो बोलते हैं आप क्यों दे काम. मैं बोला सर these people are sharks. I am a goldfish in a shark tank. So you need to save me first of all, and that helps. I'm telling you, you need to give. Sometimes you need to play with all these things. You need to give your clients that what you are giving. I am giving you complete 100% attention. लेकिन आपके इंडस्ट्री में क्लाइंट्स कंसंट्रेशन जो बायर्स पावर है इट्स वेरी हाई. वो बहुत हाई है. बिल्कुल सही बात. और सप्लायर्स पावर बहुत लिमिटेड है. बिल्कुल सही बात. क्योंकि सप्लायर आपको पूरे वर्ल्ड से हैं, बायर जो है गिन के 2-3 हैं. बिल्कुल सही है. तो इसका आपको थोड़ा नुकसान होता होगा. बिल्कुल होता है. बिल्कुल. दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज इन आवर इंडस्ट्री. That is a challenge, and I think in any kind of industry there are different challenges. Even in FMCG you have. अगर आपके 2 क्लाइंट मना कर दें तो आपको हो सकता है प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाए. सही बात है. बिल्कुल सही बात है. 100%. तो आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाइन सोचा है जिसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो सके? देखिए, in our industry you don't have those kind of products which you can give it to it's not a B2C industry. So only thing you broaden your target market. You can from India. That's why we went to Africa. We started taking orders from Africa. वहाँ पर भी इंडियन पहुँचे हुए हैं. ज़्यादा इंडियन नहीं हो. आप भारतीय वहाँ का बड़ा प्लेयर है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वहाँ भारतीय बहुत बड़ा प्लेयर है वहाँ पे, और उसके बाद और भी बहुत कंपनीज हैं. तो ऑब्वियसली दैट्स हाउ यू डू इट. एंड आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम्स, इट्स अ बायर्स मार्केट. In our case, sometime in different, it is a suppliers market. तो सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है. That is how you have to deal with. This is life. It's business is just like life. अब हम और दोनों में लड़ाई होती, कभी ये जीतती कभी हम हार जीतते हैं. ठीक है. This is how life functions. So I don't think you have to be worried about this thing. You have to have the conviction with your idea. That's the only thing that matters. आई होप कि अगर लड़ाई होती होगी तो आप क्लाइंट पे गुस्सा नहीं निकालते हो. मेरी क्लास में
Maximum time I win, so. तो बच्चे सेफ है कॉलेज में। तो अदिति, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने दलित एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर में काफी काम किया है, जैसा कि आपने बताया आपका रिसर्च का टॉपिक भी रहा। और जब हम इंडिया में दलित आबादी को देखते हैं तो जो लास्ट प्रोफेशन हमारे दिमाग में आता है कि हम उनको एंटरप्रेन्योर्स के रूप में देखें। जो भी हिस्टोरिकली लो यील्ड जॉब्स हैं वहां पर कम्युनिटी इंगेज रही है, उनके प्रोफेशन को, उनके वर्क को, उनके एफर्ट्स को सोसाइटी में वो क्रेडिट या वो वैल्यू नहीं मिलती है जो कि वो डिजर्व करते हैं। उनके काम को भी ये दृष्टि से देखा जाता है। और जो एक एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग फंडिंग की बात कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि सबसे अधिक मुखर रूप से उनको फेस करना पड़ता होगा। तो आपका अनुभव कैसा है, और इसमें अगर कुछ सिल्वर लाइनिंग्स दिख रही हैं अब, तो वो क्या है? तो ऑफ कोर्स दलितों को हमेशा हमें ऐसे देखा जाता है कि कोटा है, रिजर्वेशन है, तो सरकारी नौकरी तो मिल ही जानी है। मतलब सरकार, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला मतलब उस लायक भी नहीं है, तो अब कुछ करना है। ये तो एक है। तो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन आर कम्युनिटी, विद इन हमारी कम्युनिटी में ये एक फ़ाइट है कि हमें अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें उससे उभर के आना होगा। अब दूसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप जब मैं पीएचडी कर रही थी तो इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत मायने रखता है। और ड्यूरिंग द थीसिस वन थिंग आई फिगर्ड आउट कि कुछ ही कम्युनिटी हैं आज भी जो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, उन कम्युनिटी का एक हेजिमनी है, एक सुपीरियॉरिटी है जिनका कंट्रोल है। वो कुछ कम्युनिटी हैं। वो कम्युनिटी इसलिए है क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड हैं और वो इस बिज़नेस में आते आए हैं। हम बिहारियों का और दलितों का तो बिल्कुल ही वो कम्युनिटी बिल्टअप नहीं है। तो इसके लिए पहले एक, और बिज़नेस या जब भी एंटरप्रेन्योरशिप, एक्चुअली बिज़नेस दोनों बहुत अलग है। एंटरप्रेन्योरशिप जब भी करो तो क्या होता है, एक बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कुछ कर रहे हो तो तुम कितने दिन सस्टेन कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ सस्टेनेबल में तुम्हें एक नेटवर्क चाहिए टू बैक अपॉन। वेयर डू आई गो, आई एम लॉस्ट। आज मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने 2-3 आइडिया दे दिए, बहुत आइडिया है। आई टेल यू एक अभी चीज़ जो मैं DU में करना चाह रही हूँ। तो बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, बच्चों के लिए हैं, दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, तुम लोग के लिए, फीमेल्स के लिए स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया, बहुत हैं। कोलैटरल फ्री लोन देता है सरकार, MSME में रजिस्टर करो, उद्योग आधार कार्ड बनाओ, बहुत हैं। पर क्वेश्चन यहाँ पे आती है, मुझे पता है, पता सबको है, एक्सेस कैसे करें। कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। OTP के लिए वेट करते करते बच्चे रुक जाते हैं, छोड़ देते रहे, रहने दो। तो ये इसके लिए व्हाट आई थॉट कि हम लोग DU में बच्चों तक स्कॉलरशिप पहुँचे, खासकर दलित बच्चों तक। तो हमने एक वीडियो बनाया नो हाउ करके कि इट विल टेल यू हाउ टू मेक और तुमको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब अगर तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अचार ही बेचना है, उसके लिए तुम्हें उद्योग आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, प्रोडक्ट का नंबर चाहिए, जो भी टेक्निकल चीज़ें वो सब। ये कैसे पता होगा? कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा, बैंक के पास जाना, बैंक मैनेजर से बात करना। अब दलितों के साथ क्या होता था, जब मैं फील्ड पे गई तो मैंने 2500 एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लिया अक्रॉस इंडिया। आई ट्रैवल्ड और मैंने इंटरव्यू लिया। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जब हम बैंक में जाते थे तो बहुत लोग पूछते थे सरनेम क्या है। अब मेरा सरनेम अगर पासवान हटा दो तो नारायणी तो नॉर्मल है, न्यूट्रल सरनेम है। रंग कम है तो बंगाली, नॉर्थ इंडियन में भी खप जाओगे, है ना। तो पर अगर पासवान आ जाएगा तो पता चलेगा एक दलित समुदाय से है। अब सामने वाला कौन से कास्ट का है नहीं है, पर एक लोगों को एप्रीहेंशन है कि अगर मैं इसको दूंगा लोन तो क्या ये दे पाएगी वापस, इसका स्टार्टअप अच्छा करेगा नहीं करेगा। एंड दिस इज़ फॉर दलित एंड विमेन बोथ। ये औरतों के साथ भी, अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, वो कब से दौड़ रही है एक लोन के लिए दिल्ली में। इट टुक हर 2 ईयर, 2 साल लगे उसको अपना लॉन्च करने में। तो क्योंकि एक औरतों को भी लेके एक एप्रीहेंशन रखता है, शादी कर लेगी तो 3 साल करियर में पीछे चली जाएगी, तो क्या करना चाहिए। पर गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी MSME पे तुम्हारी सुविधाएं हैं, प्रोविजंस हैं, जिसके थ्रू यू कैन गेट फंडिंग। आपने कहा कि जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, दलितों को जनरली मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। अभी का जो नया बजट आया है उसमें ये कहा गया है कि सीवेज प्लांटेशन पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा ताकि दीज पीपल ऑल्सो गेट डिग्निटी। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ अर्बन क्लैप? Yes, ma'am. अर्बन क्लैप पता है ना? अर्बन क्लैप पे एक सर्विस होता है बाथरूम क्लीनिंग, Yes, ma'am. पता है? Yes, ma'am.
अगर आप कभी देखोगे, मैं अभी नोटिस कर रही थी, तो वो एक बाथरूम का 500 रुपये लेते सफाई का, है ना। उसमें अभी तक दिल्ली में जितने लोग को मैंने देखा सर्विस पे जो आए हैं, वो मोंडोल कास्ट के हैं या किसी एक कास्ट के ही हैं पर्टिकुलर, जनरली फ्रॉम लो कास्ट, क्योंकि बाथरूम साफ करना, ये करना आज भी उस कास्ट के लिए है। पर उस काम में अभी एक डिग्निटी आ गई है। डिग्निटी वो कैपिटलिज्म के कारण आई, एंटरप्रेन्योरशिप पे डिग्निटी के आगे मेरे पास एक आईडी कार्ड आ गया, सर्विस फ़ोन आ गया, मेरे पास इक्विपमेंट्स आ गए, मुझे एसिड हाथ से नहीं धोना, मुझे बाथरूम हाथ से नहीं करना, आई हैव ऑल द सेफ्टी इक्विपमेंट्स। पर अभी भी वो कास्ट बैरियर को नहीं ब्रेक कर पाया, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ डिग्निटी। तो इस तरीके से करके गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स है जो आप एक्सेस कर सकते हो। और आई थिंक बिजनेस और दलित एंटरप्रेन्योर्स मैक्सिमम अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ पाए हैं, विच आई थिंक दे माइट स्टार्ट इन सम, पर अभी मैक्सिमम लोग टर्शरी सेक्टर में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं। बहुत लोगों ने छोटा छोटा अपना दुकान खोल के रखा हुआ है सर्विस सेक्टर के लिए कुछ भी, और सैनिटरी ये बाथरूम अवेयर हो गया, अप्लायंसेज हो गया, लेदर वर्क हो गया। यूपी में जाओ तो मैक्सिमम आगरा के पास जितने लेदर वर्क है, जो लुई विटॉन भी कंपनी है, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, यहाँ से अपने लेदर की शीट्स बनवाते हैं और बस इम्बॉस कर देते हैं, फिर उसका उस ब्रांड का 1 लाख या 2 लाख हो जाता है। तो इस तरीके से वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन अभी भी है दलितों में, पर हाँ, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप, now that traditional occupation has become with dignity. Now they are doing it with a pride that, you know, I'm an entrepreneur. मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, मैं अर्बन क्लैप में, I'm registered, I'm cleaning, but I'm doing it with a dignity and I'm getting equally paid. 500 rupees not a small amount for 1 hour service, but you're getting paid. So this is the difference which I have felt during my research. Very good. देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं वो हैंड होल्ड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किसी सेक्टर में किसी कम्युनिटी को, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को प्रमोट करने के लिए बहुत काम की होती हैं। लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव ये है कि जितने सफल उद्यमियों से मैं मिलता हूँ, एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूँ, उनकी हिस्ट्री में सरकार की योजनाओं का योगदान बहुत कम देखा है मैंने। और मैंने देखा है कि उनका अपना संघर्ष शक्ति जो होता है, उनके अंदर जो उनका अपना साहस होता है, या चुनौतियों का सामना करने की जो उनके अंदर हिम्मत होती है, उसके बल पर ही, नॉट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट बट डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट, दे सक्सीड। तो आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भविष्य में आना हो, उद्यमिता में आना हो, तो ये दिमाग से निकाल देना है कि सरकार की योजनाएं आपको सफल बना देंगी। सरकार की योजनाएं रहेंगी, लाभ मिला तो ठीक, लाभ मिलने वाले लोग सफल हो गए, ऐसा कोई हिस्ट्री, ऐसा कोई डेटा नहीं है। और बिना लाभ मिले जो लोग सरकार के प्रॉब्लम आने के बाद आगे बढ़े हैं, उनका लंबा हिस्ट्री है। जिनको सरकार से बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, इनकी लिस्ट लंबी है। और जो सरकारी योजनाओं के बल पर सोचते हैं कि उद्यमिता में सफल हो जाएंगे, वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के चक्कर में रह जाएंगे, उनसे उद्यमिता चल। ये तुम लोग एक प्रैक्टिकल में बात बता दे रहा हूँ, ये आज तक का रिकॉर्ड यही है। कोई एंटरप्रेन्योर मुझे नहीं मिला जो सरकारी योजनाओं के बल पर सफल बिजनेस चला पा रहा हो, ठीक है। एनीवेज, बट उसका नॉलेज होना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट से अगर स्टार्टअप फंड मिल जाएगा तो तुम्हारा स्टार्टअप चल जाएगा, ऐसा तुम्हारे अंदर अगर दम होगा, तुमको अगर, जैसा जो राज ने जवाब दिया कि तुम अगर अपना प्रोडक्ट पहले बेच सकते हो, बनाने के भी पहले बेच सकते हो, तो तुमको वो फंड मिल जाएगा, जो फंड तुमको तुम्हारे बिजनेस का सीड कैपिटल बनेगा। तुमको वो लोग मिल जाएंगे जो तुमको आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे को तुम्हारा प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर करने के पहले बेचना आना चाहिए। ये एक बहुत जबरदस्त बात उन्होंने कही, जो मुझे लगता है कि तुम लोग को आज टेक होम के रूप में उसको ले लेना होगा। और अब तुम लोग अपने सवाल जो है वो अपने रेस करो, क्योंकि हम चाहेंगे थोड़ा समय बचे और हम डॉक्टर संजय पासवान जी को भी सुने, क्योंकि उनको सुने बिना आज का ये जो मीटिंग है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन बिफोर हम उनके पास जाएं, हम चाहेंगे कि तुम लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग पूछो, और हमारे दोनों आज के जो गेस्ट हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो लोग तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब दें। Anybody's questions? Raise your hand. I said, but how you get motivated about what you that you have to start your business in making Sims? That you being a lawyer, you can choose any other thing also. But why you put that, choosing that only? And how you get with that point, that SIM card business, that it's come from China and all, we have to. You're motivated, or you get motivated. देखिए, दिस इज अ वेरी, आई थिंक एज अ थ्योरी
motivation is a very important factor everybody teaches. Motivation is good, but this infatuation with your product is not good. An entrepreneur is an entrepreneur only when he or she realizes that if you are doing something and if it is wrong, you should have that courage to even change that thing. It's not like that I started मैं रात में सपना आया कि मैं सिम कार्ड बनाऊंगा, सुबह बैठ के बनाने लगा. मैंने बहुत उसमें वो किया. पहले जैसे क्या हुआ था कि पहले क्या होता था कि स्मार्ट कार्ड्स चलते थे. जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक प्रोडक्ट चलता था. वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दैट. सरकार ने बंद कर दिया, हमने फिर कुछ और बनाने लगे. सरकार ने उसको भी बंद कर दिया तो हमने कुछ और बनाने लगे. अब उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि भाई देन वी रियलाइज्ड दैट वी वर मेकिंग वन प्रोडक्ट एंड दैट वी रियलाइज दैट whatever we are manufacturing, even if we sell it on cost, we are not able to match with Chinese people. हम 20 रुपए का बनाते हैं तो 18 में बेचते हैं. हम 18 में बनाने की सोचते हैं तो वो 16 में बेच देते हैं. हम जितने बनाते नहीं वो वहाँ से ला के हम बेच देते हैं. हम बोलते पैसे अभी तो वो बोलते 3 महीने बाद देना. So see, you have to realize that only thing you have to be motivated is to do something. Let's say she just suggested that you have to make, let's say you are making a pad. ठीक है. अब right now you are selling it to someone, you have a market and that is not hell. I mean don't किसी चीज़ के पीछे ना आपको भक्ति नहीं चाहिए होनी चाहिए कि अब मैंने ये इस पे आगे बढ़ गया हूँ मैं तो मुझे यही करना है. आपको समझना पड़ता है. बहुत सी बड़ी स्टार्टअप्स पिवट की हैं. पिवट का मतलब समझते हैं आप लोग ना. पिवट मतलब ये होता है, स्टार्टअप में इट्स अ बहुत वेरी हॉट थिंग. पिवट करने का मतलब ये होता है भाई मैं आज ये कर रहा हूँ. अब जैसे मैं लॉयर था, आई डिड अ लॉ, आई पिवटेड फ्रॉम बीइंग अ लॉयर टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. पिवट किया आपने. सो पिवट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एज अ मैनेजर it's very important when to shut things down, when to close things down, when to change things. That is very important. You have to be motivated with your business. You have to be motivated for your profit, not your product. That is very important. You don't have कि सिम सपने में आ गया कि मैंने ये करूँगा. अब किसी को सपने में जो है हवाई जहाज बनाने का आ गया तो भाई थोड़ी अपना घर बेच के हवाई जहाज बनाएगा. पहले आप हवाई जहाज का कॉम्पोनेंट बनाएंगे. नहीं होगा तो कम से कम टिकट बेचेंगे आप पहले, है ना. फिर बाद में आप कुछ करेंगे, फिर बाद में हवाई जहाज बनाएंगे ना. तो इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी मोटिवेटेड अबाउट प्रॉफिट. यू आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. एन एंटरप्रेन्योर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन बहुत ज़रूरी होती है. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स बॉटम लाइन हियर. तो बॉटम लाइन इज बॉटम लाइन. So that is the biggest take home, that you have to be worried about your bottom line. Be motivated about your bottom line, not the product. Anyone? Anybody else? Next question. मुझे लगता है कि ज़्यादातर यहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र हैं. तो फर्स्ट ईयर के छात्रों को बहुत ज़रूरत है ये सब बड़े ऐसे सवाल, तो बेवकूफ़ी भरे सवाल तो ज़्यादा होने चाहिए. हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है. सॉरी टू इंटरजेक्ट. सो यू हैव टू बी वेरी शेमलेस. एक स्टीव जॉब्स हैज सेड, स्टे हंग्री स्टे फुलिश. आई से स्टे हंग्री स्टे फुलिश स्टे शेमलेस ऑल्सो. इफ़ यू आर अगर आप बेवकूफ़ी भरे सवाल अभी नहीं पूछेंगे तो 3 साल बाद आप समझदारी वाले सवाल कैसे पूछेंगे. तो ये इनफैक्ट मैं लीजिए आप. याद होगा शायद तुमने कुछ फर्स्ट क्लास में कहा था जब मैंने आस्क के बारे में समझाया था, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, कि भाई सवाल कोई भी बेवकूफ़ी भरा होता ही नहीं है. बिल्कुल सही है. देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टूपिड क्वेश्चन. और सवाल नहीं पूछने वाला जो है वो अक्सर बेवकूफ़ी भरे दिमाग में अपने विचार रखता है. ट्रू. हाँ, तो अगर तुम सवाल पूछ ले रहे हो तो तुम क्लैरिटी के लिए यू आर गोइंग फॉर क्लैरिटी. और व्हेन यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन and trying to act smart, that is the time when actually you are preserving the stupidity in your mind. True. There is nothing called stupid question. True. Anyways, तो अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संजय पासवान जी का. हाँ, प्लीज. So as we know कि आपने बताया कि जो आपका सिम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
तो उसमें जो क्लाइंट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तो सर आपने फिर भी ये करने का क्यों सोचा? क्योंकि आपसे आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो फॉरेन के कंपनीज हैं, उसके बाद भी आपके दिमाग में सिर्फ इसी चीज़ के बारे में क्यों आया कि आप सिम कार्ड ही मैन्युफैक्चरिंग करें या कुछ और नहीं? जैसे मैंने बिल्कुल जो है देखिए दिमाग में क्या है ना कि ये अब मैं ऐसा एक समय नहीं बता सकता कि इस समय इस तारीख को मेरे दिमाग में आया। अब मैंने कोशिश की, जहाँ सफलता मिले बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। अब आप आज आपका नाम क्या है? स्वीटी। आप जो है मैंने जब शुरू किया था तो मेरी जो पहली HR थी, मैं उसका भी नाम स्वीटी था जिसको मैंने हायर किया था। सो स्वीटी देखिए क्या है ना कि यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट दैट इट इज़ अ प्रोसेस, it is not it doesn't exist in one time, it doesn't exist somewhere ऐसे कि मैं गया ऐसे दिमाग लगाया आ गया। ये it's a process, you have to try, you have to be at a right place। कुछ जिस दिन जो हिट कर जाए वो चल जाता है। ऐसा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो है कि स्टीव जॉब्स ने, आप लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा। स्टीव जॉब्स ने जो है जब शुरू किया था तो उसने सोचा कि ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जो इट विल बी रेवोल्यूशनरी। वो यहाँ से इंडिया से आए, इंडिया में बाबा नीम करोली बाबा के पास गए, मिल के आए, वापस गए, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ। उनके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी आइडियाज़ कि कैसे क्या करूँ। भाई कंप्यूटर उस समय था, अब अभी आप लोग लैपटॉप देखते हैं, वो आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि इसको लैपटॉप भी मैं पूरा चेंज कर दूँ, लेकिन उसमें क्या चेंज करेंगे? तो स्टीव जॉब्स ने भी सोचा मैं क्या चेंज करूँ उसमें, उसको समझ में नहीं आ रहा था। Then he went to his client's office one day, और वहाँ पे that was IBM. He went to IBM. IBM was the biggest PC manufacturer at that point of time. और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक माउस पे वो लोग काम कर रहे हैं, माउस पे। तो उस माउस को उसने देखा और उसके बाद उसको समझ में आया कि यार कि जो है दिस इज़ समथिंग। और वो माउस उस समय उन्होंने, स्टीव जॉब्स ने उसको बेसिकली वो आइडिया चोरी कर लिया। तो वी स्मार्ट ऑल्सो, चोरी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मतलब उठा के लेके चला आया। अब ये आपने आइडिया लिया ना कि अब देखिए मैं जैसे किसी को देखा आपने बोला चलिए क्या कहते हैं कोई कंपनी अच्छा कर रही है, कोई बुरा कर रही है, कोई आदमी अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई आदमी, कई लोग होते हैं, आप किसी से प्रेरणा लेते हैं ना, तो आपने प्रेरणा ली। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैंने पिछले बैच के संग शेयर किया होगा बहुत पहले, वो वीडियो मैं निकाल के तुम लोगों के संग भी शेयर करूंगा। IBM से भी पहले जेरोक्स में कंप्यूटर बना था, और ये जो स्टीव जॉब्स के पार्टनर थे स्टीव वोजनाइक, वो उस टीम का हिस्सा थे। तो किस तरीके से जेरोक्स ने उसको लॉन्च नहीं किया कि उसको लगा कि भाई इस प्रोडक्ट में दम नहीं है, और वो IBM में गया, और फिर कैसे इन लोगों ने उसको लॉन्च किया माउस के साथ में। तो ये कई बार लोग सोचते हैं कि ये काम हो गया है, ये काम को दोबारा करने में मजा नहीं आएगा, आई एम नॉट द फर्स्ट वन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुनिया में जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वही बहुत बड़ा एडवांटेज हो, डूइंग इट इन द करेक्ट मैनर। और जैसा कि मैं एक और इनकी बात को आज दोबारा से एम्फसाइज करूंगा कि डू द राइट थिंग एंड वेट फॉर द राइट टाइम। हाँ, तो सही काम को करना है और सही समय का इंतजार करना है। मतलब ये जनरली लोग कहते हैं कि डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब ये नहीं पता है कि राइट टाइम कब आएगा। यू आर जस्ट देयर, यू हैव टू बी देयर। बने रहना बहुत बड़ी चीज होती है, कई बार लोग बने नहीं रह पाते हैं। अदिति आप बता रही थी आर्ट वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। When I was in my graduation first year, I started this company madhubaniart.com, and that was the first domain for Madhubani. And बहुत मेहनत किया उस वक्त, कई सारे वहाँ मधुबनी गए भी, वहाँ के आर्टिस्ट से मिले, बैग्स पर, पिलो कवर पर, मग्स पर, टी शर्ट्स पर मधुबनी पेंटिंग्स को पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने। उस जमाने में अमेजन वगैरह लॉन्च, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1997, ठीक है। इंटरनेट वाज आल्सो एट वेरी नेसेंट स्टेज, बहुत उस समय इंटरनेट सुना भी नहीं था हम लोगों ने। हाँ, तो 97 में इंटरनेट बहुत नेसेंट स्टेज पे था, जल्दी स्पीड वगैरह नहीं मिलती थी। तो हम लोगों ने उस वक्त काम किया, डोमेन बुक हुआ था, बहुत महंगा डोमेन बुक हुआ था। लेकिन 97 में अमेज़न ने भी 97 में ही शुरू किया था। 97 अमेज़न पॉपुलर नहीं था, और अमेज़न में सिर्फ बुक्स, वो तो यूएस में था उस समय। हाँ, यूएस में था उस समय। ई कॉमर्स बोल करके ईबे ज्यादा पॉपुलर था, ईबे वाज मोर पॉपुलर।
और मैंने उस वक्त जो हमारे प्रोडक्ट्स हमने जो बनाए थे उसको ईबे पर भी डाला था, क्योंकि ईबे ज़्यादा पॉपुलर था। जी। और लेकिन उस पर शिपिंग वगैरह का बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत झमेला था, और मे बी इट वाज द राइट थिंग टू डू, बट द राइट टाइम वाज not that was not the right time, and if one could have waited for the right time and continued doing the right thing, story could have been something different. जब जेफ बेजोस ने Amazon शुरू किया और गैराज से शुरू किया, तो वो भी सही काम कर रहा था, लेकिन सही समय उसका उस वक्त आया, लेकिन he continued doing the right thing and he waited for the right time. उसका मुझे लगा अपना टाइम आएगा, तो आया। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आज ये सारा डिस्कशन। और चलो अब मैं आमंत्रित करता हूँ संजय पासवान जी को। हेलो, पूरे सीमेज परिवार को बहुत बधाई और धन्यवाद है कि हमारे परिवार को सीमेज ने अपने परिवार में शामिल किया। मित्रों, सीमेज की स्थापना जब से हुई तब से सर कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के अवसर पर भाभी भी आई थी। हाँ, अच्छा। तो पूरे हम सब लोग जुड़े हैं सीमेज से, और सीमेज के बर्थ से ही हम जुड़े हुए हैं। हमारे जो सर थे पटना यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर रजा, वो जुड़े हुए थे, और उन्होंने ही जोड़ा मुझको नीरज जी से और पूरे परिवार से। मित्रों, क्या है कि जीवन में प्रॉब्लम तो हैं। प्रॉब्लम फैमिली में है, प्रॉब्लम नेबर से भी है, प्रॉब्लम कम्युनिटी से भी है, प्रॉब्लम क्लास में भी है, प्रॉब्लम कलीग से भी है, प्रॉब्लम टीचर से भी है। तो प्रॉब्लम तो सब जगह है। प्रॉब्लम फिजिकल भी है, प्रॉब्लम मेंटल भी है, प्रॉब्लम इमोशनल भी है कि नहीं है? कोई दोस्त रूठ जाती है तुरंत में, कोई रूठ गया, कोई रूस गया, है ना? तो प्रॉब्लम सब जगह है। इसलिए इमोशनल डिफिशिएंसी, फिजिकल डिफिशिएंसी, मेंटल डिफिशिएंसी रहता है, होता है। और ज़िंदगी में सब कुछ जो है, हम लोग हैं कर पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं हम लोग। लड़कियों को लगता है कि साहब अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, लड़का को लगता है कि अच्छी नौकरी मिले अच्छी लड़की मिल जाएगी। इट्स अ बोथ वे प्रोसेस। तो इश्यूज है, कंसर्न भी हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसीलिए कि कैरियर के लिए, कि कैसे हमारा कैरियर ठीक ठाक रहेगा। एक तो बहुत बड़ी बात कहा राज सिंह ने कि जब आपने चुना इस इंस्टीट्यूट को, ये अपने आप में बहुत आपने एक हिम्मत का काम किया, तो आपने डेयर किया। सीमेज वाले केयर करेंगे तो फिर बाद में आप शेयर करेंगे, है? ये बड़ी बात है कि यहाँ पे आना, यहाँ आकर के पढ़ना। हम जानते हैं पटना में क्या दिक्कतें हैं। मैं प्रोफेसर मैनेजमेंट का ही हूँ, ह्यूमन रिसोर्स का, और पटना बिहार के सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन का, जिसने पैदा किया पहले ऑफिसर्स, पर्सनल ऑफिसर का ये करना। हमारे LSW डिपार्टमेंट होता था पहले, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, अब वो PMIR हो गया है, अब वो HR हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो पूरे देश के ईस्टर्न पार्ट में पटना का ही जो हमारा इंस्टीट्यूट था PG LSW, वहीं से कोल इंडिया DVC में जाते थे लड़के, पर्सनल अफसर के रूप में जाते थे। तो मित्रों, ये चीज़ है। मतलब हम लोग एक खास फील्ड में, ये आप लोग एक स्पेशलाइज हैं तो जा रहे हैं काम करने के लिए, करेंगे। मेरा अपना मानना ये है कि जैसा कि राज जी ने कहा कि साहब नौकरी कीजिए, अब हम कहते हैं नहीं, नौकरी मत कीजिए आप। मतलब पहले नौकरी कर लेने के बाद फिर वो जो नौकरी और नौकर का बात होता है वो चला आता है। फिर मतलब सोचिए मालिक बनने का। हालांकि मालिक बनने से पहले एक स्टाइल है मैनेजमेंट का, जो लेटेस्ट अभी चला हुआ है, एक स्टाइल है सर्वेंट लीडरशिप। एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप का है, उसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। सुना है किसी ने नाम इस शब्द का? ये लेटेस्ट स्टाइल है। इसका मतलब क्या है कि मास्टर
टेक्स द मील एट लास्ट। नीरज कुछ अगर पार्टी चल रहा है तो नीरज लास्ट में खाता है, या अपने घर में लास्ट में हम खाते हैं। तो घर में कौन लास्ट में खाता है? मॉम खाती है, माताएं लास्ट में खाती है ना? तो माताएं लास्ट में क्यों खाती है? क्योंकि वह जो है वही मतलब कि वही सर्वेंट लीडरशिप है। वह मतलब सर्वेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉइज को कोई काम एम्प्लॉइज से नहीं हो रहा है, कोई काम स्टूडेंट से नहीं हो रहा है, तो टीचर करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, बजाय उसको उंगली दिखाने के कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये कर दिया, तुमने डैमेज कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है। ये है स्टाइल ऑफ लीडरशिप का है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हम कर देंगे उसको। लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो हम नहीं खाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने लोगों को साथ नहीं छोड़ेंगे। ये स्टाइल के लीडर कौन कौन हुए हैं? गांधी जी हुए हैं, टाटा हुए हैं। टाटा में कभी स्ट्राइक नहीं हुआ, पता है ना? कभी स्ट्राइक नहीं हुआ। उस एम्प्लॉयर ने हर समय अपने एम्प्लॉय के डिमांड्स को वेल इन टाइम समझ गया। ये देश उसी का है, मतलब ऐसे लोगों का है। देश में जो भावनाएं हैं, जैसे अब लोग कहते हैं मतलब कि अपने आप में किलिंग इंस्टिंक्ट पैदा करो। सम टीचर से लाइक दैट, बट मैं नहीं मानता हूँ चीज़ों को। अपने में किलिंग मत पैदा करो इंस्टिंक्ट, अगर पैदा करना है तो हीलिंग इंस्टिंक्ट पैदा करो। हीलिंग इंस्टिंक्ट होता क्या आजकल है, अगर तुमने अपने एनिमी को, राइवल्स को किल नहीं कर सके, अगर तो पीपल स्टार्ट किलिंग हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। इसलिए किलिंग इंस्टिंक्ट किसी भी हालत में ये निगोशिएबल नहीं है मित्रों, दोस्तों। हीलिंग इंस्टिंक्ट है। इफ नॉट हीलिंग ऑल्सो तो डीलिंग हो, लेकिन किलिंग इंस्टिंक्ट ठीक नहीं है। ये अपना इंडियन भाव है, ये भारत का देशज भाव है ये, कि हम कैसे हीलिंग इंस्टिंक्ट पैदा कर सकते हैं हम लोग हैं। तो आज क्या हो रहा है? झट में डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड्स हो रहा है, या फिर परेशान हो रहे हैं, या कहाँ है पता नहीं चल रहा है कि हम लॉस्ट हो गया कंप्लीट। बचना है उससे मित्रों। इसलिए प्रॉब्लम सब जगह है। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम इज द, बट सॉल्यूशन इज द आर्ट ऑफ लाइफ। इसलिए प्रॉब्लम है सब जगह। प्रॉब्लम फिजिकल है, प्रॉब्लम मेंटल है, प्रॉब्लम इमोशनल है, प्रॉब्लम एजुकेशनल है, प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, बट सॉल्यूशंस है। और दुनिया में आज भी सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम से ज़्यादा है। जान लेना, नौकरियां ज़्यादा है, बेरोजगार कम है। समझना होगा तुम लोगों को। बेरोजगार कम है, नौकरी क्यों? पैसा कमाना है। पैसा कमाने के 1000 रास्ते हैं, और पैसा कमाने के लायक लोग 100 ही लोग हैं। अब वो बेकार के लोग हैं जिनको लगता है साहब कि बाबू के भंसा है और माई के किचन है ना, कि भंसा है ये है बाबूजी के खुलल ना, बाबूजी के तो भैया खाएंगे। मतलब ये जो है कि भंसा रेडीमेड हमरा है, उससे बचना होगा मित्रों। हम लोग थोड़ा सोचना शुरू करें। अपने दिमाग का, औसत बिहारी अपने दिमाग का 6% इस्तेमाल करता है, औसत भारतीय 4% करता है। नहीं, सुन लो, 2% हम लोग एडवांस हैं, लेकिन वह ही काफ़ी नहीं है। उस 6 को कैसे 8 किया जाए। 8% ऑफ ब्रेन को इस्तेमाल करोगे तो निश्चित उस रास्ते निकलेंगे। इसलिए मित्रों, भाइयों, बहनों, बच्चों, तुम सब लोग भाग्यशाली हो कि यहाँ पर हो, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, हम सब लोग भी हैं। इसलिए अपने आसपास ही खोजो, बहुत सारे मिल जाएंगे एम्प्लॉयमेंट का जरिया। आसपास खोजो और मिलेगा उसे। इसीलिए हमने कहा कि साहब हर ढंग की चीज़ें हैं, आदमी स्वस्थ कैसे रहे। अब जो खाना पीना लोग खा रहा है, देख रहे हो ना आजकल जो खाने पीने का तौर तरीका है। अब ये साल चल रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। क्या होता है मिलेट? मतलब मिलेट, MILLET। मिलेट का मतलब मोटा अनाज। और ये यूएनओ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही रिक्वेस्ट पे डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मोटा अनाज, मोटा मतलब लंबा चावल नहीं, मोटा चावल, उसना चावल। दाल कौन? छिलका वाला दाल,
है ना, जो काला लगता है। नहीं तो यहाँ लगता है कि सब उजला सुंदर होता है और काला खराब होता है। ये जो कॉन्सेप्ट मोटा अनाज है, मरुआ का अनाज है, बाजरा है, जौ है, मूंग है, मोटा अनाज का। तब दुनिया जा रहा है इस पे, अब मोटा अनाज पे, और हम लोगों को मोटा अनाज से ले आया पतला अनाज पे। चावल कैसा हो? तो लंबा लंबा चावल हो, जिसमें कोई रस नहीं होता है, नीरस चावल होता है। मतलब ये कि मोटा अनाज को दुनिया अपना रही है, क्योंकि वह बॉडी फ्रेंडली है, हेल्थ फ्रेंडली है। वेजिटेबल्स का आजकल लोग गोबर छत्ता खाने लगा है, जानते हो ना? मशरूम, हम लोग कहते गोबर छत्ता कहते थे उसको हम लोग। अब और उसके नीचे में सांप रहता है ऐसा मानते थे हम लोग गांव में, कि सांप रहता है उसके नीचे में। तो जहां जहां पेड़ मिलता था हम लोग को, उसको मार डंडा मार ढेला उसको बर्बाद करते थे हम लोग। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये सब चीज़ों का अब जहाँ पे कद्दू उपलब्ध है, जहाँ कोहरा उपलब्ध है, जहाँ हरा हरा बैगन उपलब्ध है, जहाँ मूली उपलब्ध है, जहाँ गोभी उपलब्ध है, वहाँ क्यों खाएंगे सब चीज़ का? ये तो जहाँ सब्जियाँ नहीं वहाँ के लिए है। पनीर भी जहाँ सब्जी नहीं वहाँ के लिए है। जहाँ सब्जी ही सब्जी है वहाँ क्या आवश्यकता है? और अब यूएनओ ने कहा है ईट रीजनल एंड ईट सीजनल। ईट रीजनल एंड ईट सीजनल। जो जिस सीजन में हो रहा है वही खाना चाहिए, और जो जिस क्षेत्र में हो रहा है वही खाना चाहिए। हम लोग यहाँ मिर्चा नहीं खाएंगे तो बात नहीं बनेगी, चाइना और वहाँ चेन्नई में खट्टा नहीं खाएंगे तो वहाँ बात नहीं बनेगी। तो वहाँ के वातावरण में ज़्यादा एल्कलिनिटी है, तो एसिडिक हमको होना पड़ेगा। हम लोग के यहाँ एल्कलाइन ऐसी है तो एसिडिक होना पड़ेगा हम लोग को। एसिडिक है ऑलरेडी हम लोग, तो एल्कलाइन होना पड़ेगा हम लोग को। राजस्थान में इतना बालू उड़ता है कि मिर्चा नहीं खाएंगे तो बात नहीं बनेगी, हेल्थ खराब हो जाएगा वहाँ पे। तो जो जहाँ का भोजन है वो सब वहाँ के अनुकूल रहा है, तो उस पर कुछ बिजनेस प्लान कर सकते हैं क्या हम लोग? आज यहाँ पे अभी मैं गया था गुजरात में, तो गुजरात थाली वहाँ मिलता है 300 रुपये में, 5 किस्म की रोटी, 5 किस्म सब्जी वहाँ मिला। अगर हम खोजना चाहें यहाँ पे कि भाई बिहारी व्यंजन कहाँ मिलता है, तो मारवाड़ी भोजनालय तो है 1-2 यहाँ पे, लेकिन बिहारी भोजनालय है क्या? कहो नहीं है। या बिहारी भोजन पे बात होती है तो लिट्टी की बात होती है, और लिट्टी तो एक माध्यम है। अपने यहाँ दाल से भरी पूरी और दूध वाला खीर, तस्मई, तस्मई कहते हैं। अगर कहीं मिले अगर, और आलू का दम मिले, क्या मजा है तब। अब ये कहीं मिले अगर, तो एक साल में एक दिन तो नीरज जी खिलाते हैं हम लोग को, ये सब चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के ये अगर कहीं हो, बड़ी बात। या फिर सरसों का मछली, सरसों वाला मछली मिल जाए अगर तो, और मोटे चावल का भात मिल जाए, मतलब मैं कह रहा हूं कि यह भी पटने में गुंजाइश है। पटने में गुंजाइश है कि 10 होटल ऐसे खुले अगर, गुंजाइश उसकी है। लेकिन मतलब होता है ये कि इतना पढ़ले है खाली, ये होटल खुलेगा, और कोई कहेगा पड़ोस में, वही डर लगता है कि बड़ा टाई ला के पढ़ने आते थे होटल खोलने के लिए। कहो कि यही सीखा हम लोगों ने, यही सिखाया गया हम लोग को। 2 पैसे की आमदनी है मित्रों, और उसमें 10 लोगों का रोजगार भी है। इसीलिए थोड़ा सोचना होगा हम लोग को, अपने आप को डी क्लास करके। बहुत ज़्यादा क्लास हो गए हम, अब क्लासी हो गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा डी क्लास करना पड़ेगा हम लोग को। और डिग्निटी का मतलब छोटे काम को भी बड़ा समझना होगा। छोटा काम छोड़ के छोड़ दीजिएगा तो आज सबसे बड़ा चमार बाटा हो गया ना, आज सबसे बड़ा लोहार टाटा हो गया। अब सवाल है कि हम लोगों ने चमारी छोड़ दिया तो बाटा ने अपना लिया। बाटा है, लिबर्टी है। लोहारी छोड़ दिया तो टाटा ने किया, बड़ा लोहार है वो। अरविंद सर पाठक क्या है? बड़े वाल्मीकि हैं, बड़े भंगी हैं, वो साफ कर रहे हैं, और 50,000 लोग को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए। मतलब ये काम को थोड़ा मॉडर्नाइज किया, थोड़ा मैकेनाइज किया हम सब लोगों ने, और सम्मान दिया काम को, छोटा नहीं समझा उन लोगों ने। जिन दिनों पाठक जी ने काम शुरू किया था कि साहब वो सुलभ शौचालय वाला काम करेंगे, उनके परिवार के लोगों ने कहा क्या बर्बाद कर रहा है लोगों को। लेकिन अब आज जो है उनके दरवाजे पर लाइन खड़ी होती है कि हमको एम्प्लॉयमेंट दीजिए उसमें। ये कोई काम छोटा नहीं है, काम को डिग्निफाई कीजिए, सम्मान दीजिए आप सब लोग। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये तरीका, जिस ढंग से ये दोनों पति पत्नी इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को हैं, नीरज और मेघा, मैं देखा हूँ,
कितना इन्वॉल्व करते हैं? ये लोग लगभग 16 घंटा काम करते हैं। क्लासेस आपका 8 घंटे का होगा, लेकिन 16 घंटा काम करते हैं। हमने देखा है, हम लोग तो यूनिवर्सिटी में हैं, दिन में 1-2 क्लास हुआ चल दिए और ह्यूज अमाउंट ऑफ लेके आए हम लोग अपना। और चूंकि लीडरशिप में है तो थोड़ा ऐसे भी डर मानता है लोग। मतलब ये है मित्रों कि लेकिन जो काम करता है, आई एम श्योर कि इन ईयर्स टू कम ये यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे, निश्चित तौर से मुझे लगता है। और भगवान करे कि आप लोगों के प्रयास से सीमेज एक यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा हो जाए, ताकि आपको भी गर्व होने का मौका मिले कि साहब हमारी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी हो रही है। और मुझे विश्वास है मित्रों कि निश्चित तौर से एक गीत है ना कि दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, आजीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं तो जहर से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। जो होगा देखा जाएगा जब हो ही गया, है ना। इसलिए ज़िंदगी में आए हैं तो हम लोग फेस करना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, सॉल्यूशन इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। राज सिंह जी सिम कार्ड बनाते हैं, लेकिन संजय पासवान सर के पास वो चार्जर है जो किसी को भी चार्ज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से ये ऊर्जान्वित करते रहे, इनका आशीर्वाद हम लोग को हमें मिलता रहे। और मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा सबसे पहले डॉक्टर संजय पासवान जी को। इनकी प्रेरणा पर आज हम लोग को ये सौभाग्य मिला कि हम लोगों को डॉक्टर अदिति को और श्री राज जी को सुनने का अवसर मिला। और पुनः हमारे अभिभावक जो हैं वो हमारे संस्थान में आकर के हम लोग को मोटिवेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।